Good morning, everyone. Am I audible to all of you? Now, before starting with the session, I just want to ask you people one question. Why are you preparing for this particular exam, or why do you want to be a judge? Just imagine yourself sitting before the interview board, and the interview board is asking you, why do you want to be a judge? Anyone? Amit? एक तो मैम कॉमन आंसर ही है कि सर्व करना पब्लिक को। Okay, good. पर जो जो सच होता है वो तो मैम यही होता है कि स्टेटस वगैरह होता है। वो आंसर तो सभी मैम झूठ ही बताते हैं कि मेरा ड्रीम था ये वो। Okay, good. Anyone else? Why do you want to be a judge? Abhay, Adamya, Akash, Gurjot, Harshit. Where are you people? Priyanka, Saloni, Suman, Sheetal. Yes? Why do you want to be a judge? Please answer. Let's try to find the answers from the session itself. See, this is not going to be a one-sided conversation. You people have to participate. Priyanka, you want to answer? अच्छा career option है। Yes, you are not audible properly. Can you repeat your answer? I'm saying कि अच्छा career option है। A great Where? job है, सबको चाहिए होती है। Good career option. Very good answer. Anybody else? मैम सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। Respectful job. Very good. Anybody else? Nidhi, you want to answer? Ma'am, I don't have any particular answer, but I would say I just want to become one. So हम जस्टिस plus देने के as लिए that. स्पीडी तरीके से। Let Nidhi answer first. Ma'am, Yes, as Nidhi. also other has mentioned that it's a good career option, and plus it's Hmm. just I personally I just want to become one. So that's it. All I have. Okay, right. Anybody else wants to answer? All right. So I think we have got sufficient answers to start the discussion on why to be a judge, or why to at the first place start preparing for this examination, why to devote so much of effort and time to get this job. Now there are obviously two types of answers whenever this question is being asked. Firstly, they just try to uh, show to the interview board that they want to serve the society, they are going to be useful to the society at large, because they are capable of being good judges, and they are going to serve the society properly, right? So that answer is for the interview board. And the second answer, which is more of a personal nature, the second answer pertains to you want to have a good career option, you want a respectful job that is being respected in the society, you want to get empowered
especially for girls, this is this job is one mean to get empowered in every whichever in every sense. uh, Apart from that, people also want to be a judge to better the condition of their family. Their family background may not be that sound, and they want to make their family as a whole financially stable. So all these reasons are pretty much valid, and these are actually the reasons why a person starts preparing for this particular examination. Serving the society, or being useful to the society, that can be in every profession. चाहे आप litigation में भी क्यों ना हो, you are serving the society. चाहे आप academia में भी क्यों ना हो, you are serving the society. चाहे आप administration में भी क्यों ना हो, right? So पब्लिक को सर्व करने का जो aspect है, that is in every career choice, not only in the judiciary. But your personal reasons are much more important to carry you forward in this particular preparation. This is the reason that keeps you motivated throughout your preparation. And you should write down your reason for why you have started preparing for this examination on your wherever you study, on your study table, so that whenever you get this demotivated, or whenever you just don't feel like studying, you should have that why before yourself. Why at the first place you started preparing for this particular examination, right? So जिसका why जितना ज्यादा बड़ा होगा, the journey will be more smooth for you. This journey is a very long journey. This is a ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपने 1-2 महीने या 2-4 महीने या 6 महीने पढ़ा और बस निकाल लिया, बन गए जज. This is a very very long journey, and there will be many ups and downs in this journey. But if you know your why, this journey will be very smooth for you, and this is the reason that is going to carry you forward in this preparation, right? So firstly, you should know why at the first place you have started preparing for this examination, why you wanted to be a judge. All the reasons are very very much valid, और ऐसा नहीं है कि आप इन reasons को interview board में नहीं बोल सकते हैं. In fact, I would request you people to tell your actual reasons before the interview board. When you sit before the interview board and they ask you why do you want to be a judge, just be as authentic as you can, क्योंकि उन लोगों को भी पता है, राइट? सो कहीं ना कहीं जब उन्होंने भी अपनी जर्नी शुरू की होगी, तो उनके लिए भी रीजंस मेन उनके पर्सनल ही रहे होंगे. सो पर्सनल रीजंस में ऑब्वियसली यू कैन नॉट से कि नहीं मुझे तो बहुत अमीर बनना, मुझे करप्शन करना है, and these are obviously not the reasons why you have started preparing for this examination at the first place. शुरुआत जब कोई भी इंसान किसी काम की करता है तो एक अच्छे इंटेंशन से ही करता है. Whether a person becomes corrupt or not, that is something that is being taught during the this job. Differential differential association एक थ्योरी है criminology में, according to which a person learns wrong things being in the association of those kind of persons. So गवर्नमेंट जॉब्स में करप्शन क्यों होता है? कोई भी इंसान शुरुआत इस चीज से नहीं करता गवर्नमेंट जॉब की कि मुझे करप्शन ही करना है, बट लेटर ऑन पीपल लर्न दीज थिंग्स. सो राइट, एनीवेज, you can give your personal answers to the interview board. That is one thing for sure, and that is something that is going to fetch you even more marks. Serving public and being beneficial to the public, that is completely fine, but this is one good career option. This is one answer that you can obviously give to the interview board. अच्छा career option क्यों है, ये भी पूछा जा सकता है. अच्छा करियर ऑप्शन क्यों माना जाता है जुडिशरी को? एनीवन? A ग्रेड जॉब है. और मैम पुलिस वाले वगैरह सब लोग ही रिस्पेक्ट करते हैं एक तो इसमें.
सैलरी पैकेज वगैरह वेरी बढ़िया। गुड, गुड गुड। ठीक है, तो ये सारे ही रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एक अच्छा करियर ऑप्शन होता है। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो जुडिशरी को और आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को अलग करता है, वो है इसमें जो जुडिशरी में फिक्स टेन्योर है। 3 साल के लिए जो है आपको कोई उस जगह से हिला नहीं सकता। सो देर इज स्टेबिलिटी of tenure for 3 years, so that obviously gives you ample of time for for yourself, for your family, and to it is a good enough reason for you to settle down at a particular place with your family, right? So एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर एग्जांपल कोई आईएएस आईपीएस उनके कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है, कभी भी उनका ट्रांसफर हो सकता है, राइट? कभी भी उनको अपना सारा सामान उठा के किसी दूसरी जगह किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ सकता है, बट जुडिशरी में ऐसा नहीं है। देयर इज अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 3 years in every state, right? So this is one good reason that makes it a good career choice. Secondly, there is independence in this particular job. जुडिशरी में जितनी इंडिपेंडेंस है, जितना इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, वो किसी और जॉब में पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट दैट मेक्स इट अ गुड करियर चॉइस, इंडिपेंडेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ डिसेंट सैलरी। ठीक है, आपका बढ़िया लाइफस्टाइल रहेगा, यू कैन लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। The salary is quite decent. The facilities that are given are also at par with any other good job. So these are the these are the aspects that make it a good career option, right? So you just give it a thought as to why do you want to be a judge, and write down that particular reason of yours, and try to answer around that reason only in the interview board also. Okay, all right. Now once we have decided as to why do we want to be a judge, why do we want this particular job, the next step is to start with the preparation as to how to become a judge. why clear hone ke baad next step aayega how. Now this particular exam, be it you can take any state, किसी भी state को आप ले लीजिए, there are 3 stages of this exam, that is prelims, mains and interview. These are the 3 stages of this exam, and you have to clear all the 3 stages to be a judge. ठीक है, तो इस पोजीशन को पाने के लिए आपको इन 3 अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, और तीनों को पार करोगे तभी आप जज कहलाओगे। सिर्फ प्री क्लियर करने से या सिर्फ मेन क्लियर करने से या फिर सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू prepare well for all the 3 stages, and you have to go through all the 3 stages to be a judge. Now how do we prepare for all these 3 stages of this particular exam? And one important question that has been repeatedly asked by a lot of the aspirants is can we do it with self study? Is taking coaching mandatory to clear this exam? क्या हम इसको बिना कोचिंग के क्लियर ही नहीं कर सकते हैं, right? So I would say this is a personal choice that that you can take, whether to take coaching or not. कोचिंग लेने के अपने फायदे और नुकसान। I have met people who say कि उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती यही की कि उन्होंने इस एग्जाम के लिए कोचिंग की, शायद सेल्फ स्टडी करते तो ज्यादा बेहतर रहता। I have seen such people who would say कि कोचिंग ने बहुत हेल्प की है, शायद सिर्फ सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाता। लेकिन मुझे आज तक एक भी ऐसा पर्सन नहीं मिला है जो जज बना और उसने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ उसका कोचिंग की वजह से हुआ है, उसने बाकी कुछ भी नहीं किया, उसने खुद की कोई प्रिपरेशन नहीं की है। ऐसा मुझे आज तक कोई भी एस्पिरेंट नहीं मिला है, राइट? सो कोचिंग लेना है या नहीं लेना है, दैट इज कंप्लीटली योर पर्सनल चॉइस। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और आप सारा का सारा सिलेबस खुद से कवर कर सकते हैं,
then you do not need coaching. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके यूनिवर्सिटी में या आप जिस भी दो स्कूल में पढ़े हैं वहां पे आपको उतने अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाए, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी बढ़िया नहीं है और खुद से पढ़ने में शायद बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, देन यू कैन गो फॉर कोचिंग. या फिर आपको लगता है कि I cannot keep myself motivated or I cannot keep myself disciplined in this journey, और मुझे रेगुलरली वो एक फोर्स चाहिए जो मुझे ये बोले कि यू शुड प्रिपेयर वेल, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड. तो वो एक कमांड अगर आप कॉन्स्टेंटली चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो कोचिंग कैन बी वन मीन्स, क्योंकि कोचिंग में रेगुलरली क्लासेस होती है, तो आप यू कैन अटेंड दोज क्लासेस एंड स्टडी ऑन योर ओन. बट ultimately everything goes down to self study. there is no substitute to self study. आपको पढ़ाई तो खुद से ही करनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं से भी कितने ही बढ़िया से बढ़िया टीचर से पढ़ लो, जब तक आप उन चीजों को खुद नहीं पढ़ोगे आपको वो चीजें याद नहीं होंगी, वो चीजें समझ में नहीं आएंगी. right? A teacher or a mentor can help you to show you the way, but you have to walk on the way on your own. आपको रास्ते पे तो खुद ही चलना पड़ेगा. आपको रास्ता दिखाया जा सकता है लेकिन वो रास्ता पार तो आपको खुद ही करना पड़ेगा. राइट? सो सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. आप कहीं से भी कोचिंग ले लो, आपको अल्टीमेटली जब तक आप खुद बैठ के नहीं पढ़ोगे आपका कोई भी एग्जाम जो है क्लियर होना बड़ा मुश्किल है, और हो सकता है कि प्रीलिम्स हो जाए तो मेंस रह जाएगा. राइट? सो सेल्फ स्टडी के बिना तो कोई भी एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो उसको क्वालिफाई करना नामुमकिन है. राइट? सो अल्टीमेटली इट इज about you studying the things on your own that really clarifies all your doubts. You can take help but ultimately it is just about you. ठीक है? तो आजकल के टाइम में अगर हम देखते हैं तो जितने भी टॉपर्स आते हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स आते हैं, हमें लगता है कि सारे तो कोचिंग ले रहे हैं तो शायद कोचिंग लेना ही एकमात्र सोल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है. कोचिंग सेंटर्स में हजारों बच्चे एक एक बैच में होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो पाता है. ठीक है? तो उस कोचिंग सेंटर की ही बात होती तो सारे बच्चे लग जाते, ऐसा तो नहीं है. उन बच्चों में से भी सिर्फ वो बच्चे उस कोचिंग सेंटर के लग पाते हैं जो सेल्फ स्टडी पे जिन्होंने फोकस किया होता है. ठीक है? सो जिन्होंने खुद से पढ़ा होता है सिर्फ वही उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे. राइट? सो सेल्फ स्टडी के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. आजकल थोड़ा सा वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव too much of information I would say around us. इतने सारे YouTube चैनल्स हैं, और जब कोई एग्जाम होता है तो एक बरसाती मेंढक की जैसे सबके सब एकदम से बाहर निकल के आते हैं कि हमारी सेंटर ज्वाइन कर लो या हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लो, या फिर यूट्यूब पे अपने जो भी वो चीजें अपलोड करते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है और आप सोचते हो कि ये भी मैं देख लूं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, वो भी मैं देख लूं, लेकिन इतनी जरूरत है नहीं. अगर आप खुद से उस चीज को पढ़ सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, और अल्टीमेटली पढ़ना आपको खुद ही. आप कितने यूट्यूब चैनल्स पे बार बार वो वीडियोस देखते रहो, जब तक उस एक्ट को आप खुद उठा के खुद पढ़ोगे नहीं तब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी. इनफैक्ट द मोर द इंफॉर्मेशन मोर विल बी द कंफ्यूजन इन द एग्जामिनेशन हॉल. आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे और आपको लगेगा कि अरे ये बताया तो था उस टीचर ने उस चैनल पे उस उस वीडियो में, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है. और इनफैक्ट कई बार बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट करने से आपको क्लैरिटी के बजाय सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही होगा. राइट? सो ट्राई टू सॉर्ट आउट द थिंग्स. जितना सिंपल आप चीजों को रखोगे उतनी ही ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी. जितना आप इनको कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही चीजें आपके लिए मुश्किल होती चली जाएंगी. कुछ भी मुश्किल नहीं है जुडिशियल सर्विसेज में, बहुत सिंपल सा सिलेबस है, बहुत इंटरेस्टिंग है लॉ. अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से आप खुद भी कर सकते हैं. राइट? सो सेल्फ स्टडी कैन बी, and self study is the only way out, obviously. Even if you take coaching, ultimately you have to do the self study to get the final selection. Right? So
this is something that I wanted to tell you about, whether to take coaching or not. So this is your personal choice. You have to decide ultimately on your own. But even if you take coaching, don't forget to study the things on your own. Now, coming to the 3 stages of this exam: prelims, mains and interview. ठीक है, 3 ही स्टेजेस होते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू द प्रीलिम्स, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रीलिम्स सबसे आसान स्टेप होता है, और उन्होंने जो है बहुत सारे स्टेट्स के प्रीलिम्स बहुत आराम से निकाले. जबकि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेंस या इंटरव्यू तो उनके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि उनके आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत बढ़िया हैं और उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, लेकिन उनका मेन जो हर्डल है वो प्रीलिम्स है. राइट. सो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक अलग स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है. हालांकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस का जो सिलेबस है, इट इज द सेम. चीजें आपको सेम पढ़नी है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी तीनों के अप्रोच में जो है बहुत डिफरेंसेस हैं. और जो एस्पिरेंट इन डिफरेंसेस को समझ जाएगा वो तीनों के तीनों स्टेजेस को भी क्वालिफाई कर लेगा. राइट. सो आप लोग सब इतने पढ़े लिखे हैं, और आई फील मोस्ट ऑफ यू आर वेरी मच सिंसियर विद योर प्रिपरेशन ऑल्सो. आप सब में काबिलियत है, लेकिन बस उस एक आप चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि इन तीनों के तीनों स्टेजेस की जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है. राइट. सो अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वास्ट है. हालांकि मेंस का भी सिलेबस वही है, लेकिन अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को देखें तो फिर भी हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को अलग फिल्टर आउट कर सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ने. और इंटरव्यू का तो खैर कोई आई वुड से इट इज जस्ट अ पर्सनालिटी टेस्ट, तो इसके लिए कोई अलग प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है. जब आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो अपने आप ही हो जाएगी. सो जस्ट don't worry about the interview stage. Prelims can be one of the toughest stages, क्योंकि ये एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट भी है. यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है वो उनकी छटनी हो जाती है. यहाँ पे मान लीजिए कि 100 अगर वैकेंसीज हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 10% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं प्रीलिम्स के लिए. ठीक है. तो अगर 100 वैकेंसीज हैं तो 1000 एस्पिरेंट्स को ही प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया जाएगा, जिनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा. राजस्थान जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 15% भी है. राइट. सो बाय एंड लार्ज नॉर्मली अगर हम बात करें तो 10% जो है वैकेंसी का वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है. और मेंस के लिए जो है आपको 3 गुना एस्पिरेंट्स को बुलाया जाता है, 3 टाइम्स की वैकेंसीज. और इंटरव्यू के लिए जो है खैर इंटरव्यू के बाद तो जो भी वैकेंसीज होंगी वो फिल हो ही जाएंगी. राइट. सो दिस इज द स्टेज दैट एक्चुअली filters out a lot of aspirants, क्योंकि 10 उन बेस्ट 10% में आना एक बड़ी बात है. राइट. आपने कितनी ही अच्छी प्रिपरेशन क्यों ना की हो, अगर आप इस स्टेज में कुछ मार्जिन से भी रह जाते हैं तो you again have to go through the process all over again. Right. So आपको इन 10% में आने के लिए उन 90% को बाहर निकालना पड़ेगा. उन 90% को जो है बेसिकली आप उनसे आपकी फाइट है कि उनसे आपको बेहतर बनना पड़ेगा. राइट. अब प्रीलिम्स में सबसे बड़ी गलती जो है एस्पिरेंट्स वो क्या करते हैं कि आपने नोट्स पढ़ लिए, बुक्स पढ़ ली, केस मटेरियल पढ़ लिया, बट बेयर एक्ट नहीं पढ़ते. बेयर एक्ट इज द एक्चुअल लॉ. राइट. जो असल में लॉ है वो तो बेयर एक्ट में ही लिखा गया है. वो आपके मेंस में भी काम आएगा, वो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा. बाकी जो चीजें हैं वो तो आपके
just wait for a minute. All right, I'm so sorry, I had to hold on for a second. All right, so let's proceed. So बेयर एक्ट जो है वो एक ऐसी आई वुड से रामबाण इलाज है प्रीलिम्स का। और अगर बेयर एक्ट आप नहीं पढ़ोगे तो दुनिया का कोई भी प्रीलिम्स दे लो, किसी भी स्टेट का जुडिशियल सर्विसेज दे लो, क्वालिफाई नहीं होगा। सिर्फ नोट्स पढ़ने से या सिर्फ बुक्स पढ़ने से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो सकता है। आपको बेयर एक्ट पे ना सिर्फ आपको बेयर एक्ट पढ़ना, बल्कि यू हैव टू हैव अ गुड कमांड ओवर द बेयर एक्ट। और गुड वो कमांड कैसे आएगी? जब आप उस बेयर एक्ट को बार बार पढ़ते रहोगे, राइट? सो कीप रिवाइजिंग योर बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट के बिना जुडिशियल सर्विसेज में कुछ भी नहीं है। You have to have a good command over the बेयर एक्ट along with reading the बेयर एक्ट। बेयर एक्ट पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप सेक्शंस को रट लो, कीवर्ड्स को रट लो, बल्कि आपको बेयर एक्ट को इस ढंग से पढ़ना है दैट यू हैव अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द प्रोविजंस। और वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी? जब आप बेयर एक्ट को बुक्स के साथ पढ़ोगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट लुक एट द प्रोविजन इन द बुक या फिर आपके जो भी नोट्स हैं, ठीक है? तो प्रीलिम्स के लिए आपको बेयर एक्ट के साथ साथ अपनी बुक्स या फिर अपने नोट्स भी रेफर करने ही पड़ेंगे, सो दैट यू कैन हैव अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवर द पर्टिकुलर प्रोविजन। ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि आप सारे के सारे प्रोविजंस को रट लो, और रटने की जरूरत है भी नहीं। यू जस्ट शुड यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट द पर्टिकुलर प्रोविजन, कि हाँ ये प्रोविजन सम इट इज समवेयर नियर टू दैट पर्टिकुलर प्रोविजन, और उस प्रोविजन में क्या चीज कही गई है। अगर आपको इतनी सी क्लैरिटी है उस बेयर एक्ट के बारे में, उस लॉ के बारे में, आई थिंक दैट वुड सफाइस फॉर यू टू क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ एनी स्टेट। सेकेंडली, प्रीलिम्स में एक जो सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स करते हैं वो है कि कुछ एक्ट्स तो वो बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं, और कुछ एक्ट्स को वो पढ़ते ही नहीं है। उनको लगता है कि इनके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही छोटा एक्ट क्यों ना हो, चाहे वो कोई कोर्ट एक्ट या फिर रेंट एक्ट ही क्यों ना हो, आपको उसके भी सारे के सारे प्रोविजंस पढ़ने ही पड़ेंगे। सो प्रीलिम्स में सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस कंप्लीट करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको हर एक प्रोविजन फिंगर टिप्स पे याद हो। ऐसा तो जिंदगी में कभी भी नहीं होने वाला है। अगर आप उस दिन के लिए बैठे हो कि जिस दिन मुझे फिंगर टिप्स पे सारे के सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे, उस दिन मैं किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स दूंगा, तो वो दिन तो कभी नहीं आना है, राइट? सो सिंपल बात यहाँ पे ये है कि आपको सिलेबस कंप्लीट तो जरूर करना है, लेकिन आपको फोकस जो है उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे रखना है, कि आपको एक बेसिक आइडिया है उस एक्ट के बारे में कि कौन सा प्रोविजन कहाँ पे और उस प्रोविजन में क्या है। यू डोंट रीड टू यू डोंट रियली नीड टू रट्टाफाई एवरीथिंग, बट यू हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस। कोई भी एक्ट या कोई भी पार्ट छोड़ के नहीं जाना है, राइट? नाउ दिस वाज फॉर प्रीलिम्स। बेयर एक्ट आप लोग डेली यू हैव टू कीप रीडिंग द बेयर एक्ट्स। नाउ कमिंग टू द मेंस पार्ट। मेंस का भी सिलेबस जो है इट इज बाय एंड लार्ज सेम एज द प्रीलिम्स। सिर्फ लैंग्वेज के पेपर्स अलग होते हैं, या फिर खैर जीके तो फॉर एग्जांपल यूपी में प्रीलिम्स में भी आता है, ठीक है? तो मेंस और प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो लगभग हर स्टेट में सेम ही होता है, एक्सेप्ट फॉर दी लैंग्वेज पेपर,
ठीक है, तो आपको मेंस के लिए सिर्फ लैंग्वेज ही एक ऐसा पेपर है जो अलग से प्रिपेयर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड द मेंस आर वन एंड द सेम। जो प्रीलिम्स में आपने तैयारी की है वो आपकी मेंस में भी काम आएगी। बट मेंस में जो है the difference between prelims and mains is that in prelims you knew the provisions, you had an idea about the provisions, but you had the answers in the क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से उन 4 ऑप्शंस में से ही एक आंसर था। ठीक है, तो आपने अगर फौरी तौर पे भी चीजें पढ़ी हैं तो आपको कहीं ना कहीं आंसर पता चल जाएगा। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में यू हैव द क्वेश्चन बट यू डोंट हैव द आंसर बिफोर योर आईज, यू हैव टू राइट द आंसर। सो जो चीजें आपने प्रीलिम्स में पढ़ी थी अब आपको वो लिखनी है। सो राइटिंग स्किल्स is something that matters the most in the mains stage. अब बहुत बार एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि उनको आता सब कुछ है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है, लॉ की बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी मेंस में मार्क्स नहीं आ रहे। उसका एक रीजन ये है कि आपने अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब आंसर राइटिंग स्किल्स पे भी बच्चे बहुत पूछते हैं कि व्हाट कैन बी द बेस्ट काइंड ऑफ आंसर। देन आई वुड से आंसर राइटिंग इज अ स्किल, और जब कोई चीज स्किल होती है इट हैज समथिंग टू डू विद योर ओन पर्सनल मैटर्स। आप उस स्किल को अपने अकॉर्डिंग कितना बेहतर ढंग से लिख सकते हो, दैट इज व्हाट ऑल दैट मैटर्स। अब जब हम आंसर्स चेक करते हैं एस्पिरेंट्स के, तो बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके तरीके बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी उनके दोनों के ही तरीके बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने लिखा है। कई लोग फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से उस बात को बोल पाते हैं, कई लोग पैराग्राफ फॉर्म में उस बात को बोल पाते हैं, कई लोग बुलेट पॉइंट्स में उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, राइट। सो देयर इज नो वन फिट सोल्यूशन दैट वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल। एक कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो सबको ही फॉलो करना है। और अगर आप किसी के कहने पे ये चीज फॉलो करते हो कि नहीं फ्लो चार्ट्स ही बनाओ, या फिर सिर्फ पैराग्राफ में ही लिखो, या फिर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में ही लिखो, देन आई वुड से यू आर किलिंग योर ओन स्किल्स, यू आर किलिंग योर ओन क्रिएटिविटी। आंसर राइटिंग स्किल्स हैव टू डू अ लॉट विद योर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अगर खत्म हो जाएगी तो आपको ना तो आंसर लिखने में मजा आएगा और ना ही पढ़ने वाले को उस आंसर को पढ़ने में मजा आएगा, राइट। सो तरीका चाहे जो भी हो, बट यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर वे। अगर आप अपने तरीके से ही कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप उस आंसर को अपने दिल से नहीं लिख पाएंगे, और ना ही पढ़ने वाले को जो वो उतना इम्पैक्टफुल लगेगा, राइट। सो फर्स्ट इज दैट you have to decide on your own comfortable way of answer writing। क्या फ्लो चार्ट में ज्यादा, अब आंसर के ऊपर भी डिपेंड करता है कई बार चीजें। कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिनको आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिनको बुलेट पॉइंट्स में आप ज्यादा एक्सप्लेन कर पाते हैं, कुछ ऐसे जिनको आप पैराग्राफ फॉर्म में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो दिस इज कम्प्लीटली अपॉन यू, आप उस आंसर को किस तरीके से लिखना चाहते हैं। अपने आंसर्स लिखो, खुद उन आंसर्स को पढ़ो, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या whether it is making any sense or not। Apart from that, whenever you write your answer, try to underline the keywords or the important aspect जो आप चाहते हो कि एग्जामिनर को जरूर दिखे, चाहे वो उसके पास कितना ही कम टाइम क्यों ना हो, लेकिन उन चीजों पे तो उसकी नजर जरूर जाए। आपको यू हैव टू राइट अ लॉट मेनी थिंग्स इन द आंसर, और बिल्कुल ये मैटर करता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर आंसर, बट just for the sake of writing the answer, just for the sake of giving length to the answer, don't compromise with the content। और वो कंटेंट कहाँ से पता चलेगा? रीड द आंसर
रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। कई बार एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा फटाफट लिखना शुरू कर दिया। अब वो पूछा चाहे जो भी गया हो, उनको जो आंसर लिखना है वही लिखना है। Don't do this mistake, don't commit this mistake. This is not going to help you in your fetching more marks in the mains. Firstly, read the question properly. उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने पे ही आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या चीज पूछी गई है, और वो जो चीज पूछी गई है वो मिस आउट नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट दैट ऑल्सो। अब आपकी आंसर शीट किस एग्जामिनर के पास जाएगी, वो एक लक प्लेज इट्स ओन पार्ट इन दैट केस। हर एक एग्जामिनर का अपना थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन कम से कम जो बेसिक चीजें हैं वो आपने अपने आंसर में जरूर लिखी हो। तो वो बेसिकली जिस भी एग्जामिनर के पास जाए, आपके पास एक डिसेंट मार्क्स उस क्वेश्चन पेपर में उस पर्टिकुलर आंसर में दे दिए जाएं। Right, so you have to read the question properly, and then for 10 seconds, just give 10 seconds of your life to think about the question, and in those 10 seconds just frame your answer in your mind and then start writing. So एकदम से instantly लिखना शुरू करने के बजाय just give 10 seconds to yourself to ponder over the aspects that are being asked in the question, and to decide the way you are going to write your answer. Frame the answer firstly in your mind and then start writing. Every answer should have introduction part, main body as well as conclusion. अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी, and all these three things have to go in a flow. अगर आपके आंसर में फ्लो मिसिंग है तो it wouldn't really help you with fetching good marks. So there have to have a flow in the answer. और वो flow कब आएगा, जब आपने उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा सा अपने आंसर के बारे में सोचा हो, instead of start writing instantly. Right? So prelims के बाद जैसे ही आपका prelims खत्म हो, start writing the answers जितना जल्दी हो सके, और कोशिश करो कि पहले भी आप हर रोज एक आंसर तो कम से कम लिखते ही रहते हो। राइट, सो जितना आप लिखोगे उतनी ही अच्छी आपकी राइटिंग स्किल्स एनहेंस होगी। चीजें सारी सेम है, सब लोगों को वो चीजें पता है, सबको आंसर्स पता है, लेकिन किन लोगों का सिलेक्शन होना है, इट विल डिपेंड ऑन हाउ वेल यू राइट दी आंसर। और आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो है वो ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इट इज इनहेरेंट इन अ पर्सन कि आप ये पैदा इसको लेके आप पैदा हुए हो। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप बिल्कुल सीख सकते हो और उसको आप बेहतर भी कर सकते हो वक्त के साथ। लेकिन ये एक बड़ी पर्सनल चीज है कि आप किस तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल पाते हो, और ये चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा आंसर्स लिखते रहेंगे। राइट, सो दिस इज फॉर दी मेंस का एक मतलब द ओनली सोल्यूशन इज टू राइट मोर एंड मोर आंसर्स। लेकिन आंसर्स भी आप तभी बेहतर लिख पाएंगे जब आपके पास कंटेंट अच्छा होगा। और कंटेंट कब अच्छा होगा, जब आपने चीजें अच्छी पढ़ी होंगी, अच्छी बुक्स पढ़ी हों, अच्छा केसेस पढ़े हों, या फिर आपने बेरेट को अच्छे से समझ के पढ़ा हो। राइट, सो एवरीथिंग गोज डाउन टू हाउ वेल यू हैव स्टडीड। और उस जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप उसको आंसर की फॉर्म में अच्छे से लिख पाओगे। Now, after the mains, there comes the last stage of this examination, which is the interview stage. इंटरव्यू स्टेज में आपको ज्यादा दिक्कतें वैसे आएंगी नहीं, क्योंकि इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स और मेंस के दौरान आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। लो में आपकी क्लैरिटी ऑलरेडी है, तभी आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो। इंटरव्यू तक अगर आप पहुंच गए हो, देन यू कैन बी यू कैन बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ कि आपको इतना तो समझ आ गया है कि इस एग्जाम के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है। और इंटरव्यू इज जस्ट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। वहां पे आपकी कोई लॉ की नॉलेज को चेक नहीं करने वाला। लॉ की नॉलेज आप में है, वो आपने मेंस क्वालिफाई करके ही बता दिया है। इंटरव्यू इज द स्टेज वेयर इन द इंटरव्यू बोर्ड जजेस whether you have the personality to be a judge or not. राइट, सो जज बनने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, क्या आप में वो क्वालिटीज है या नहीं। सो दिस इज बाय एंड लार्ज चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स,
how well are you able to communicate your ideas to the interview board, how well, what is your mindset about this particular job, how well you would be able to handle the courtroom drama, and how capable are you to fit in this particular job, right? So interview के लिए आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, just go with the flow and be yourself. Try to be as natural as you can. You do not need to be somebody else, और कुछ ऐसे आंसर देने की जरूरत नहीं है जो आपको लगता है कि ये ज्यादा इम्प्रेस करेगा। उन लोगों को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बी योरसेल्फ, एंड आई फील if that works, you can very well qualify the interview as well. Now, these are the 3 stages of the judicial services examination. तीनों ही stages में जो एक important aspect काम करता है, इसको मैं बोलती हूँ 3 hours of this preparation. इस preparation के 3 R क्या क्या हैं? Read, write and revise. These are the 3 hours of this particular exam, or be it any competitive examination. ठीक है, तो ये जो 3 hours हैं, ये हर एक competitive examination में आपको काम आते हैं. Read, write and revise. Read as much as you can. जितने बेरैक्ट आप जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार उसको पढ़ो. ठीक है, पढ़ने से ही चीजें क्लियर होंगी, पढ़ने से ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, पढ़ने से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ बेहतर होगी. सो रीड all the provisions of the law. Right. Once you have read the provisions, try to write those provisions in your own words. जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो वो आपकी मेमोरी में कुछ परसेंट तक स्टोर होती है, लेकिन जब आप उस चीज को लिख लेते हो तो उसकी जो द कॉन्सेप्ट्स गेट स्ट्रेंथन्ड इन योर मेमोरी. वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं एक परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाते हैं. सो जो जो चीजें आपने जिंदगी में लिखी हैं उनको आप कभी नहीं भूलोगे, दैट इज फॉर श्योर. इसीलिए अपने नोट्स होना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पढ़ के अपने शब्दों में लिखते हो जिसको आप समझ सकते हो, तो वो चीज आपने सिर्फ लिखी नहीं है कागज पे, बल्कि वो आपने अपने दिमाग में भी छाप ली है, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन कि आपने एक बार चीजों को पढ़ा है, फिर उनको लिखा भी है. और कभी कभी ये ट्रिक बड़ी काम आती है कि कई बार ऐसे होता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मन भटक रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है, या फिर डायरेक्ट पढ़ना अपने आप में इट कैन बी अ वेरी टीडियस टास्क, इट कैन बी अ वेरी बोरिंग टास्क, क्योंकि वही चीजें बार बार पढ़ना नहीं मन करता है और कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता. बट एनीवेज यू हैव टू रीड इट इफ यू वांट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, राइट? सो कोशिश करो कि अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप उसको लिखना शुरू कर दो अपने आप. जब आप उसको लिखना शुरू करोगे आपको अपने आप उसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा. इनफैक्ट लॉ तो ऐसी चीज है जिसको आप जितनी बार पढ़ोगे आपको उतनी बार लगेगा कि अरे ये चीज तो मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दी थी, अच्छा ये भी इसमें कीवर्ड था, ये भी इसमें कॉन्सेप्ट था. तो अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप उस चीज को लिखना शुरू कर दो, आप उन कीवर्ड्स को लिखना शुरू कर दो, आप उस प्रोविजन को जो है अपने शब्दों में लिखना शुरू कर दो, तो अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा. सो डू write the things in your own words, and once you have written those things you have to revise it. बिना रिवीजन के तो इस एग्जामिनेशन में पार पाना नामुमकिन है. यहाँ पे ही सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स गलती करते हैं. सभी पढ़ते हैं, सभी अपने नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन उनको रिवाइज नहीं करते हैं. जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे वो चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद ही नहीं आएंगी. ठीक है, तो आपको कम से कम 3-4 रिविजन्स आपने अपने नोट्स के, आपने अपनी चीजों के किए हुए होने चाहिए व्हेन यू एक्चुअली अपीयर इन द एग्जामिनेशन.
बिना रिवीजन के कुछ भी काम नहीं आएगा। रिवीजन का आई वुड से इट इज वन ऑफ द टफेस्ट टास्क। आई वुड नॉट डिनाई कि इंटरेस्टिंग नहीं है ये चीज, क्योंकि आपने जो चीजें, जब आप पहली बार किसी चीज को पढ़ते हो तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, जब आप दूसरी बार पढ़ते हो तो थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग लगती है, बट फिर भी ठीक है, हो जाता है। लेकिन अब आप उस चीज को बार बार पढ़ते हो तो आपको लगता है कि कुछ नया तो सीखने को नहीं मिल रहा है। बट द थिंग इज दैट दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। this is a process that you have to go through, राइट। सो रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा। कम से कम 3-4 रिवीजन जब तक नहीं होंगे तब तक आप नहीं बोल सकते दैट यू आर completely prepared for this particular examination, right? So firstly read the content, read the books, read the bare acts, then try to write them down in your own words. यहाँ पे आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपने काफी हद तक अपने खुद के नोट्स बना लिए होंगे, and then try to revise all those notes, all those bare acts, and you will be completely prepared for the examination. And these are important on every stage. Read, write and revise, be it prelims or mains or इंटरव्यू। हर एक स्टेज पे ही आपको ये तीनों के तीनों चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा। All right. Now coming to the next aspect, I think it's already 11. Let's just see how much more time we are going to take. Just let me message Neelam because she have the session at 11, so that she doesn't wait. All right. So now coming to the next important issue that many of these aspirants face, which is whether we should target multiple states or we should focus on our own particular state while preparing for this particular exam. On this particular aspect also, I would say this is a personal choice of each and every aspirant. My personal suggestion would be to appear in as many states as you can. जितने states के एग्जाम दे सको उतने एग्जाम्स दो। इसका रीजन क्या है कि आप जितने भी स्टेट के एग्जाम्स दोगे उतना ही आपकी आप चीजों को बार बार रिवाइज करोगे, उतना ही आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती चली जाएगी। आपके अपने टारगेट स्टेट्स हो सकते हैं 1 या 2, लेकिन जब आप दूसरे स्टेट के एग्जाम देते हो तो उनको डोंट take those states as an added pressure on yourself, but just take those exams as mock tests for your own particular target state. बाकी स्टेट के एग्जाम ऐसे दो कि जैसे आप कोई भी मॉक टेस्ट देने जा रहे हो। इसके फायदे क्या हैं? एक तो आप रिवीजन कर पाओगे। नॉर्मली जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिवीजन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक एग्जाम पास में ना हो। तो जब आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जाओगे थोड़ा बहुत तो कम से कम रिवीजन करके ही जाओगे। सो उस स्टेट में अपियर होने के चक्कर में आपका एक रिवीजन और अच्छा हो जाएगा। दूसरा आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जाओगे, इट विल गिव अ ब्रेक
फ्रॉम योर स्टडीज ऑल्सो। और ब्रेक्स जो है बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रिपरेशन में। जितना जरूरी आपके लिए पढ़ना है उतना ही जरूरी है छोटे छोटे ब्रेक्स होना। महीने में 1-2 दिन या फिर 2 महीने में 5-7 दिन। ये ब्रेक जो है वो आपको थोड़ा सा आपके डेली रूटीन से अलग करेंगे, और आप दे विल गिव यू द टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रिपरेशन। एंड द बेस्ट वे पॉसिबल इज टू अपीयर इन दी अदर स्टेट्स, क्योंकि जब आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक तो थोड़ा सा पढ़ाई के रूटीन से छुट्टी मिल जाएगी, कहीं दूसरी जगह घूम के भी आओगे। दूसरा, जब आप उस स्टेट के एग्जाम में अपीयर होगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस दिशा में जा रही है, क्या आप सही ढंग से प्रिपेयर कर भी रहे हैं या नहीं। राइट, सो अगेन दिस इज अ पर्सनल चॉइस वेदर यू वांट टू अपीयर इन मल्टीपल स्टेट्स। अगर मान लीजिए आपका टारगेट स्टेट का एग्जाम आने वाला है 10 दिन के अंदर ही, और उस बीच में किसी और स्टेट का एग्जाम पड़ता है, देन आई वुड से कि यू कैन जस्ट स्किप दैट, क्योंकि 10 दिन में अगर आपके मेन जो स्टेट का एग्जाम आने वाला है और आप किसी और स्टेट में एग्जाम देने जाते हैं तो उस चीज से बाहर निकलने में भी आपको टाइम लगेगा, उस फेज से निकलने में भी बाहर टाइम लगेगा। सो अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है तो उस केस में यू कैन स्किप the exam for other state, you can just focus on your own state. But other than that, I would say you can go on giving exams for the other states, अगर आपके अपने स्टेट का या अपनी प्रायोरिटी स्टेट का एग्जाम रिसेंट फ्यूचर में या कुछ 10-15 दिन में नहीं है, अगर 1 महीने का भी ब्रेक है तब भी आप दे सकते हो। ठीक है, जितने एग्जाम दे सकते हो उतने दो। कभी कभी एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि अरे घर वाले पूछेंगे कि उस स्टेट का दिया था क्या रहा, इट एड्स ऑन प्रेशर टू द एस्पिरेंट्स। दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी देयर। तो उन केसेस में आप कोशिश करो या तो घर वालों को समझा दो कि दिस इज नॉट माय प्रायोरिटी स्टेट, इसके लिए मैं स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम सो दैट मेरा रिवीजन हो जाए, और मुझे अपनी प्रिपरेशन का पता चलता रहे कि सही कर रहा हूँ या नहीं। अगर लगता है कि नहीं, घर वाले बहुत ज्यादा होप्स ले लेते हैं और जब उनकी होप्स टूटती हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इस चीज का आपकी प्रिपरेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यू फील डीमोटिवेटेड फॉर लेटिंग देम डाउन। तो उस केस में कोशिश करो कि अगर इफ यू आर स्टेइंग आउटसाइड, तो आप कोशिश करो कि घर वालों को बिना बताए वो एग्जाम देते रहो। ठीक है, इससे आपके आपके मॉक टेस्ट भी होते रहेंगे, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और आपको अननेसेसरीली घर वालों की होप्स का बर्डन भी नहीं झेलना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज दीज आर द वे आउट्स दैट पॉसिबली कैन बी देयर। बट घर वालों को समझाने की कोशिश ही करो कि द थिंग इज दैट, और यू आर जस्ट गिविंग द एग्जाम जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट। बाकी होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता है। राइट, सो have them in confidence. All right, I think we have catered to a lot of aspects. All right, any other doubt if you want to ask? All right, yeah, there is one more issue that most of the aspirants face while preparing for this particular examination, and that is the fear of failure. The only enemy of yours in this preparation is your fear of failure. ये जो डर है कि क्या होगा अगर नहीं हुआ, तो क्या होगा अगर जज नहीं बन पाए, तो क्या होगा अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, वो मुझे दे वुड सी मी एज अ फेल्योर। This fear of failure is the worst enemy of this examination. इस डर को जो खत्म कर देगा वो सफलता पा लेगा। You have to go all out while preparing for this particular examination. You should not have
an iota of doubt on yourself, an iota of doubt on your capabilities, an iota of doubt about your success. If you prepare well, you are sure to succeed. And if, by any chance, if you are not able to be a judge, this is not at all a failure on your part. You are far better as a person, you are far better as an advocate, you are far better as an academician. So आप जिस भी field में जाओगे, you will shine out, because of this particular preparation, because of this phase that you have gone through. So just don't think about much about whether you will get selected or whether you will not. Just enjoy this journey. ये time दोबारा नहीं आना है life में. Just be with yourself, learn about your own weaknesses and strengths, study as much as you can, go out, hang out with friends. ऐसा नहीं है कि जेल बना के बैठ जाओ कि बस कहीं जाना ही नहीं है, बस अपने कमरे में बंद ही रहना है. बीच बीच में छोटे मोटे ब्रेक लेते रहो, फैमिली से मिलते रहो, बात करते रहो अपनों से, and just enjoy this phase, enjoy this journey. This is a very very beautiful journey. और ये टाइम आपको बाद में याद आएगा जब आप जॉब करने लग जाओगे, तब आपको लगेगा कि अरे सबसे अच्छा टाइम तो वही था, और वो हमने इतनी टेंशन्स लेके, इतना ओवर थिंकिंग कर करके गवा दिया. Just enjoy this journey of yours, and for sure you will come out with flying colors. There is no doubt about that. Don't have any doubt on your capabilities, because I feel, I know most of you who are in this particular classroom. I do know personally a lot many of you, and I feel all of you are capable of being a judge. You people do have the kind of discipline that is required. You people do have good intentions that that will carry you forward in this particular preparation. Just enjoy your journey, explore, learn, and don't think much about the outcome. Just go with the flow. जो चीजें जैसे आ रही है, take them one at a time, and you will succeed for sure. There is no doubt about that. Just don't have the fear of failure or any sort of fear in your mind. Feel be free of every fear, and you will start loving this journey. All right, I think I have discussed most of the issues that you people have sent me. But still, if there is any particular doubt, you can ask me now itself. No doubt? Yes, So shall ma'am. we end this session? करंट Vivek. जजमेंट मैम, करंट जजमेंट कैसे कवर करें? जैसे लैंडमार्क तो सबको मतलब पता ही होता है, तो करंट अगर लिखें तो एक अच्छा इम्पैक्ट, तो मैम वो कहाँ से कवर करें? देखो, करंट जजमेंट के लिए एक तो लाइव लो आप फॉलो कर सकते हो. उसके अलावा मार्केट में आपको काफी ऐसी बुक्स मिल जाएंगी जो करंट जजमेंट्स से केटर करती हैं. ठीक है, तो ये दो सोर्सेज हो सकते हैं, लाइव लो और मार्केट में जाके आपको आई थिंक आती हैं ऐसी ऐसी बुक्स भी आती हैं, ऐसी बुकलेट्स आती हैं, मैगजीन्स आती हैं जो रीसेंट जजमेंट्स पे फोकस करती हैं. सो जस्ट गो टू द मार्केट एंड यू विल फाइंड द मटेरियल. Okay. Okay, ma'am. So these are Thank the you. two sources. You have to look for them. मैम Yes. मैम, जैसे सेल्फ स्टडी और कोचिंग के बारे में तो आपने बता दिया, पर मान लो अगर हम कोचिंग ले रहे हैं तो यहाँ दिल्ली में तो बहुत सारे कोचिंग्स है, तो कौन सी कोचिंग प्रिफर करनी चाहिए? क्योंकि मैं उसको लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ. देखो, कोचिंग कौन सी लेनी चाहिए, ये अगेन आई वुड से इट्स अ पर्सनल चॉइस, क्योंकि फीस जो है वो हर एक कोचिंग की अलग है,
फैकल्टीज हर कोचिंग की अलग है, सो यू हैव टू लुक एट योर ओन फाइनेंशियल स्टेटस के आप कितना फीस पे कर सकते हो, और व्हाट आर योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर कुछ एक सब्जेक्ट्स की हैं तो ऐसी कोचिंग्स भी होंगी जहाँ पे पर्टिकुलर उन सब्जेक्ट्स के लिए अलग से फीस लेके वो लोग आपको अवेल करा देंगे। या फिर अगर आपको फुल फ्लेजेड ही कोचिंग लेनी है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, whether you are capable of paying that much fees or not। ठीक है, तो अगर फीस दे सकते हो, अगर फीस इश्यू नहीं है और आपको पूरा फुल फ्लेजेड ही कोचिंग चाहिए, तो जो भी 2-3 कोचिंग आपको लगता है कि ये बेस्ट है, गो विद दैट। ओके मैम, मैम थैंक यू। न्यू लॉज का आपको क्या लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में इम्पैक्ट पड़ेगा कोई? देखो अभी तक तो जितने स्टेट्स के हिमाचल वगैरह या यूपी का जितना भी हमें पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो पुराने लॉ से ही पूछ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नए पुराने दोनों से पूछ रहे हैं। सो ऐसा तो कोई स्टेट अभी सुनने में आया नहीं है जो पुराने बिल्कुल ही डिस्कार्ड करके नए पे ही चला गया हो, राइट। सो और दूसरी बात, नए और पुराने में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, तो अगर आप अभी पुराने ही एक्ट्स पढ़ते रहेंगे तो भी कोई दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं, राइट। सो थोड़ा थोड़ा सा देखते रहो, जो जो नए चेंजेस आए हैं वो नए में आप देख लो, बाकी आप पुराने फॉलो करते रहो, क्योंकि अभी तक किसी स्टेट में ऐसा आया नहीं है कि पुराने पढ़ने नहीं है या फिर सिर्फ नए से ही क्वेश्चन पूछे जाए। कैसे किया जाए मैम लैंग्वेज का हरियाणा पंजाब के लिए? देखो एक तो न्यूज़पेपर फॉलो करते रहो। हरियाणा पंजाब में जो इंग्लिश में मेन चीज है वो ऐसे है, ठीक है, और दूसरा जो वोकैब वगैरह भी है वो आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने से ही अच्छी होगी। और उसके अलावा विजन आईएएस की जो वेबसाइट है उस पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के ऐसे के जो पेपर्स हैं आप एक बार उनको जरूर देख लेना, ठीक है। तो ओके उससे मैम। आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे आपको ऐसे लिखना है। आई थिंक दैट इज अ बेटर वे टू राइट द ऐसे, और वहां से आपको कंटेंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, तो वो आपकी जुडिशरी एसेस के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। ओके मैम, ओके, ऑल राइट, सो थैंक यू। see you all at 11:30। Thank you everyone। Thank you, ma'am.